My friends, we've come close to the end of this month. मेरे मित्रों, हम इस माह के अंत में अब आप पहुंचे हैं। Thank God for how much He has carried you through the month of May. परमेश्वर का धन्यवाद करें, पूरे मई महीने उसने आपको कैसे लेकर के चलाया है And greater things await us. और भी बड़ी चीजें हमारे इंतजार में हैं। And continue to expand. इसलिए आप सतत बढ़ते रहें। Today His blessing comes from Jeremiah 15:20. आज उसकी आशीष यिर्मयाह 15:20 से आती है। And I will make you to this people और मैं तुझको उन लोगों के सामने a fortified wall of bronze. पीतल की दृढ़ शहर पनाह बनाऊंगा। They will fight against you, वे तुझसे लड़ेंगे but they shall not prevail over you. परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, For I am with you क्योंकि मैं तुझे बचाने to save you and deliver you, और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ, declares the Lord. यहोवा की ये वाणी है। Look at how beautifully the Lord is telling our situation देखिए परमेश्वर हमारी परिस्थिति को कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं and telling us what He is prepared to do for और us. ये भी बता रहे हैं कि वो हमारे लिए क्या करने को तैयार He है। is going to make us a strong, fortified wall, वो हमें एक दृढ़ शहर पनाह के समान बनाने जा रहे हैं, so secure, पूरा सुरक्षित, not being able to be bothered at all, और हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, not being able to be distracted, जो कि नाश नहीं किया जा सकता, indestructible. जो अविनाशी है। Thank God for He's filling you with His Spirit right now. धन्यवाद प्रभु का कि वो अभी आपको आत्मा से भर रहे हैं, Strong Spirit. सामर्थ्य आत्मा से। When He said, "Go, Joshua, be strong. जैसे उसने कहा कि यहोशू तू आगे बढ़, मजबूत हो, Go, Moses, I am with you." मूसा तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। They went as a strong prophet of God, as a leader of और God, वे परमेश्वर के सामर्थी अगुवे के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में गए and they accomplished. और उन्होंने जय पाई। God is making you such a strong person, परमेश्वर आपको वैसा ही सामर्थ्य जन बना रहे हैं a leader. और अगुवा भी। People might fight against you according to this verse, चाहे लोग जो हैं इस वचन के अनुसार आपसे लड़ें, but you should know they will not prevail over you, पर आप जान लें कि वो आपके खिलाफ जयवंत न होंगे, because the Lord will be there to save us and deliver us. क्योंकि परमेश्वर हमारे बचाने और उद्धार करने के लिए वो हमारे साथ होंगे। When Isaac dug the wells in the land of his father, और इसहाक ने अपने पिता के देश में कुएं खुदवाए। he was digging the wells that his father had dug. वो उन कुएं को खुदवा रहा था जो उसके पिता ने खोदे थे। It had become closed, so he was reopening it. वे बंद हो गए थे तो वो उन्हें फिर से खोल रहा था It was belonging to him. और ये उनके थे। But some people in that land came and opposed him and said, "This is our land, this is our well." पर उस देश के कुछ लोग आकर कहने लगे ये हमारे कुएं हैं, ये हमारा देश है। They were trying to fight against him and to make him fight with them also. और वे कोशिश कर रहे थे कि वो उनसे लड़े और वो उससे लड़े। Isaac never fought back with them. इसहाक ने कभी उनसे झगड़ा नहीं किया। He just kept on doing the will of God वो बस ईश्वर की इच्छा पूरी करता रहा and continuing how God is leading him. और जैसे ईश्वर की अगुवाई थी वैसा बढ़ता रहा। He left that well and went to another well वो एक कुआं छोड़ करके दूसरे कुएं पर गया and dug it, and it gave water. और उसे खोदा और उससे बहुत अच्छा पानी निकला। Again they came and fought with him. फिर वे आकर के उससे झगड़ने लगे It didn't stop. They kept on fighting with him. और वो उससे ऐसे ही झगड़ा करते रहे He went on from one to another. और वो एक के बाद एक दूसरे में जाता रहा। There, God then spoke to him. वहाँ परमेश्वर ने उससे बातचीत की। Isaac, I am with you to bless you and multiply. इसहाक मैं तेरे साथ हूँ कि तुझे आशीष दूं और तुझे बढ़ाऊं। Don't worry. चिंता मत कर। As God spoke to him, he had the strength to open up another well. जब परमेश्वर ने उससे बातचीत की तो उसे बल मिला कि वो एक और कुआं खुदवाए। And this time God had given him deliverance from all his enemies. और अब की बार प्रभु ने उसके हर एक शत्रुओं से उसे छुटकारा दिया। And whatever Isaac dug, God blessed and made water come out of और it. जितने कुएं इसहाक ने खोदे उन सबको आशीष दी ईश्वर ने और उन सब में पानी निकला। God increased him 100 times as he had promised him. और जैसे प्रतिज्ञा थी परमेश्वर ने उसे 100 गुना बढ़ाया He became very wealthy. और वो बहुत धनी हो गया। People might be opposing what you start today. आज आप जो शुरू कर रहे हैं लोग चाहे उसका विरोध करें, The new company you're launching, the new business you're launching, जो नई कंपनी या जो व्यवसाय आप शुरू कर रहे हैं, the ministry you're starting in a very tough place, एक कठिन स्थान पर जो सेवा आप शुरू कर रहे हैं, or
People might be opposing the good that you're trying to do, even in the government. और यहाँ तक कि जो भलाई आप करते हैं उसका भी लोग शासन में भी विरोध करें। The good that you're trying to bring in your family, the change you're trying to bring in your family. जो भला या जो परिवर्तन अपने परिवार में लाने की कोशिश में People might be opposing everything. लोग सब चीजों का विरोध करते हों, But take heart. पर हियाव बांध है। God is making you a fortified wall. परमेश्वर आपको एक मजबूत शहर बना रहा है। They will not prevail. वे जयवंत होंगे। You will remain strong and keep doing. आप जो है मजबूत बने रहेंगे अपने काम में। And the Lord will save you and deliver you. और प्रभु आपको बचाएगा और आपको छुटकारा देगा। Shall we say amen to this promise? आइए हम इस प्रतिज्ञा के लिए आमीन कहें। Thank you, Lord, for promising to deliver us. हमारे छुटकारे की प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद प्रभु। Save us, Lord, हमें बचा लें प्रभु from all our enmity. हमारे हर एक शत्रुओं से, And deliver us once and for all. और हमेशा के लिए हमें छुटकारा दें। Let our heart be strong, Lord. हमारे हृदय मजबूत बने रहे प्रभु, Accomplish things for us, और Lord. हमारे लिए आप चीजों को हासिल करें। Accomplish things for us, Lord. हमारे लिए चीजें हासिल We करें। receive the victory. हम विजय को स्वीकारते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्य नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। The hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए, Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्य नगर कोयम्बतूर में आएं। तारीख है रविवार 7 जुलाई, समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।